What we have today is Mahindra XUV 700. We are doing a review on the car, so let's get started. Start करते हैं इस वीडियो को. First of all, just look at the grill. It is a 7-slat grill. You have a big bunch of air dams, so helps to pass through the air to the engine, and you have all LED units. Like high beam, low beam, and you also have an additional feature in the headlights that I'll talk about later. Coming down below, you have the fog lights. As I already told you, यहाँ पे आपको मिलती है स्किड प्लेट बीच में. ये आपका टोइंग हुक, एंड दिस इज़ द साइड क्लैडिंग. एंड ओवरऑल फ्रंट लुक देख लो, बहुत बोल्ड आती है. एंड दिस कार इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ XUV 500. तो आपको वही पैटर्न मिलता है, सारा बॉडी स्ट्रक्चर वही है. इंडर्स पे आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे ये सारी क्लैडिंग जो प्लास्टिक है, बॉडी को और मस्कुलर लुक देने के लिए बनती है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द टायर्स. जस्ट हैव अ लुक एट द अलॉय व्हील्स. आपको मिलते हैं इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, और जो टायर साइज़ रहने वाला है वो है 235/60 R18. तो देख सकते हो. कमिंग टू द ORVM, यू गेट द इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स ऑन द मिरर्स, एंड यू हैव क्रोम गार्निश ऑल अराउंड द विंडो पैनल. आपको साइड से मिलते हैं जो मैंने एडिशनल एक्सेसरीज में लगाए हुए हैं इस पर. एंड यू हैव द प्लस डोर हैंडल्स. दे गो इनसाइड, so it looks very beautiful, and this is the feature of Range Rover cars. देख सकते हो सारी साइड लुक. गोइंग बैक टू द रियर ऑफ द कार, ये देख सकते हो ऐसी लुक आती है पीछे से. एंड first of all, you have the arrow shaped tail lamps. They are all LED except for the brake light and the reverse light. You also get the sequential indicator here. You have the badging, नीचे AX7L जो मॉडल है. You have the new Mahindra logo here as well, and you have a rear camera. You get rear washer, rear defogger, rear wiper. You have the top tail mounted stop lamp, and you get 4 sensors. And also get the skid plate here. This has been additional accessories. Coming again to the side, here you have the fuel lid of the car, and don't forget you have the stickering here. You have Adrenox badge here. You get free subscription of 2 years for the Adrenox system, so you get your car connected to your mobile phone and a smartwatch. So this is how the car looks, guys. Tell me in the comments, how do you like the car? And now coming to the roof, you have the shark fin antenna, and you also get a panoramic sunroof. And it has been claimed that the sunroof is the most largest amongst all the car in the segment. You can have a look. You get an amazing feel of the sunroof when you are driving the car. Let's get into the interiors, but before that I have something to show you. Guys, let me show you one more beautiful feature. ये देखना गाइस, मैं जैसे ही डोर खोलूँगा सीट देखो. यू गेट द वेलकमिंग फीचर, जिससे आपको अंदर बैठना और बाहर उतरना इजी हो जाए. ठीक है, अभी आपने सीट देखी, एंड नाउ यू सी द सीट. इट इज़ कमिंग बैक टू इट्स पोजीशन. लेट्स गेट इनसाइड. The moment you open the door, you feel that plush, luxurious interiors. You have the softest leather here. This is your window controls and the central locking controls. You also get the ORVM controls here. यहाँ मिलता है आपको Mercedes से इंस्पायर्ड सीट का कंट्रोल, आपकी रिक्लाइनिंग. इट्स 12 एडजस्टेबल सीट्स. ये मिलता है आपको डार्क क्रोम फिनिश में डोर हैंडल. यू हैव अ पियानो ब्लैक फिनिश ऑन द हैंडल एज वेल. यहाँ आ जाता है आपका बॉटल होल्डर, एंड यू गेट एन एम्ब्रेला होल्डर एज वेल. ये है साइड का स्पीकर सेटअप, एंड लेट्स गेट इनसाइड. स्टार्ट स्टॉप बटन हियर. लेट मी स्टार्ट द कार फॉर यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आपको मिलती है एक बड़ी सी LED स्क्रीन. लेट मी शो इट टू यू. You have an all digital setup on the speedometer. So you guys get two 10.25 inches screen, one for the infotainment, one for the speedometer. You get a lot of controls on your speedometer here. I'll show it to you. So you have the flat bottom steering wheel. आपको मिलती है leather finish यहाँ पे. You have the cruise controls here. You have the controls for the infotainment system on your left. यहाँ पे मिलती है आपको silver finish. Within that there is a piano black finish.
एंड यहाँ ऑल्सो यू गेट द न्यू महिंद्रा लोगो. ऐसे कुछ AC इवेंट्स की लुक आती है. यहाँ पे भी चारों तरफ सिल्वर फिनिश है, गार्निशिंग जैसे आप कह सकते हो. एंड यू हैव द 12 स्पीकर सिस्टम एज इज द टॉप मॉडल. तो आपको यहाँ मिलते हैं सोनी के 12 स्पीकर सिस्टम. एंड नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेंटर कंसोल, यू हैव अ लॉट ऑफ बटन्स विच लुक लाइक एन एयरक्राफ्ट. ये है हैजार्ड लाइट का बटन. यू हैव द 360 कैमरा हेयर. ये देख लो कैमरा स्टार्ट हो गया है. एंड ये है आपका स्क्रीन सेवर इनेबलिंग और डिसेबलिंग का फंक्शन. एंड एज यू गेट 3 ड्राइव मोड्स, तो आपका ड्राइव मोड्स का फंक्शन है. व्हेन आई विल क्लिक इट, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 मोड्स, जिप, जैप और जूम. इनके बारे में बाद में बात करेंगे. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एयर वेंट्स, यू हैव टोटल ऑफ 4 एयर वेंट्स इन द फ्रंट ऑफ द इंटीरियर. यहाँ पे सिल्वर गार्निशिंग मिलती है आपको. Next, you have the wireless charging here, and you have space to keep your phone. One phone you can keep inside that place, and one phone can be charged through this wireless charging. You get 2 USB ports, one for the normal USB and the second one for the C type. ऐसी कुछ gear knob की feeling मिलती है आपको guys. You have all leather touch here as well. You have the good piano black, but one negative of this piano black is it is a magnet for dust and scratches. तो हो सके तो अंदर भी PPF करा लो if you know what PPF is. यहाँ मिलती है आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, दैट इज़ अ पार्किंग ब्रेक. एंड यू हैव एन ऑटो होल्ड फीचर फॉर द सेम. पूरे कंसोल में आपको सिल्वर गार्निशिंग साथ में मिलेगी एंड पियानो ब्लैक. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्लश बनाता है इंटीरियर्स को. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दिस क्राउन, यू हैव फिजिकल कंट्रोल्स बोथ फॉर द इंफरटेनमेंट एज वेल एज द स्पीडोमीटर. तो ये कंट्रोल को आप घुमा सकते हो. दिस इज एन एनालॉग फिजिकल बटन. इससे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ईदर यू कैन कंट्रोल द वॉल्यूम और यू कैन कंट्रोल द ऑप्शंस. 4 बटन्स मिलते हैं आपको यहाँ पे. ये है म्यूजिक का बटन, ये है बैक का बटन और होम का बटन. यू हैव द कॉल कंट्रोल्स हियर, और ये आपका फेवरेट फीचर जो भी आप यूज़ करना चाहो. एंड नेक्स्ट वील ओपन द आर्मरेस्ट. इस खोलते ही गाइस आपको मिलती है यहाँ की रखने की जगह. एंड यू हैव अ चिल्ड आर्मरेस्ट. तो यहाँ कोई भी बॉटल्स वगैरह आपको जो भी रखना हो दैट वुड बी चिल्ड. आपके पास ऑप्शन है उसको ठंडा करने का और ठंडा रखने का. And that's it for the armrest, guys. Let's move on to the next thing. Guys, you have an ivory color interior all around in the car, and you have this beautiful design on the seats. You have a very wide seat, so you have a good bolstering as well, and you get very comfortable even in the long drives. एक नेगेटिव इसका है, इसका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर नहीं मिलता है इसमें, तो दैट इज अ फ्लॉ. ऊपर की तरफ आओगे तो यू हैव ट्रांसलूसेंट टाइप की आपको LED मिलती है, विच गिव्स यू अ वेरी लग्जरियस फील. यू हैव 2 स्मॉल लाइट्स हियर विच विल गो ब्राइट इन द डार्क. एंड ऑल्सो, हाउ कैन वी फॉरगेट, you have a large panoramic sunroof. You can check it out. It gives a beautiful view of the car from inside as well, and ओवरऑल बहुत अच्छी लुक आती है. ये बटन्स के बारे में बात करोगे, लेफ्ट साइड का बटन है. यू हैव द डोर वार्निंग्स फॉर द लाइट्स. बीच में आपको मिल जाता है SOS का बटन, जो आजकल सब गाड़ियों में मोस्टली आता ही है. इफ़ यू गेट कनेक्टेड कार फीचर्स इन दैट कार. यहाँ मिल जाता है आपको सनग्लास होल्डर. You have lights for the looking mirror. As I said, you have 12 speakers Sony surround system. तो आपको 2 speakers आगे and दो speakers पीछे भी मिलते हैं. You have 4 speakers on the door. You get tweeters and you get a front mounted speaker which is placed somewhere here. Dashboard पे screen saver मिल जाता है आपको जब आप screen saver का function enable कर देते हो. And you have ब्यूटीफुली स्टिच्ड लेदर ऑल अराउंड इन द कार. ऊपर ब्लैक है, नीचे आइवरी है, उसके नीचे सिल्वर है. तो यू हैव अ 3 टोन इंटीरियर. पूरा इंटीरियर ऐसा दिखता है. इंटीरियर की लुक कुछ ऐसी आती है. Here you get the buttons for the traction control, the hill descent control and the headlight leveler. ये आपको 1 2 3 मेमोरी फंक्शन मैंने बताया था वो मिल जाते हैं. These window control gets illuminated और मैंने ambient lighting बाहर से लगाई हुई है एज एन एक्सेसरी. तो एक 2 चीज़ें मिसिंग थी इसमें जो बाकी सेगमेंट की कार्स में आती हैं. वो थी वन ऑफ दोज वर द एम्बिएंट लाइट. तो मैंने लगा दिया. इट ऑल्सो गेट 64 कलर एम्बिएंट लाइट नाउ. तो आप लोग भी देख सकते हो. इफ़ यू हैव अ ट्रस्टेड सेलर फॉर दीज एक्सेसरीज तो आप उनसे जाके बात कर सकते हो. दीज एम्बिएंट लाइट गिव्स अ वेरी प्लश फील टू द इंटीरियर. नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइज, हम बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर या फिर डिजिटल जो क्लस्टर आता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो राइट पे आपको सारे सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के. सो लेट मी शो यू.
ये आपकी आ रही है फ्यूल इन्फो, कितनी एवरेज है, लाइव एवरेज, रेंज कितनी है आपकी गाड़ी की, एंड द DEF लेवल एज इट इज़ अ डीजल इंजन। नेक्स्ट यू हैव ए ड्राइव इन्फो। ड्राइव इन्फो बताती है आपकी गाड़ी कितना चली है इस ट्रिप पे, मतलब जो आपकी ट्रिप भी जो नॉर्मल कार्स में आता है। यू हैव द टोटल टाइम कि आपने ड्राइव कितनी कर रखी है लास्ट रिफ्यूलिंग से। यू हैव योर एवरेज स्पीड, दिस इज ट्रिप बी, दैट वाज ट्रिप ए। यू हैव अ क्लॉक एंड ये है ड्राइवर टेंशन लेवल। इसका क्या मतलब होता है, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आप कभी कभी फटीग हो जाते हो, यू फील वेरी फटीग, तो आपको कार ही एक नोटिफिकेशन दे देती है, ये लेवल लो हो जाता है। जैसे ही लो होता है द कार टेल्स यू टू स्टॉप और रेस्ट लेने को, या जो भी कार आपको खुद बता देती है। नेक्स्ट ये आता है अलर्ट हिस्ट्री। इफ़ यू हैव योर लो फ्यूल लेवल, लो टायर प्रेशर एंड एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको वार्निंग यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट वी गो ऑन टू सेटिंग्स। चलो सेटिंग्स में लास्ट से बताऊँगा। यू हैव डिस्प्ले लेआउट, तो आपको 3 लेआउट्स मिलते हैं इस कार में। ये है नॉर्मल मोड जिसपे कार अब भी है। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन मोड। अब ध्यान देना, दोनों जो स्पीडोमीटर्स हैं वो छोटे हो गए हैं एंड यहाँ पे आपको एक बड़ी सी स्क्रीन मिलती है। देखो ये सेम वही फ्यूल इकोनॉमी वाली स्क्रीन है जिसमें पहले कार नहीं आ रही थी, अब XV7 बनी आती है इसमें। नेक्स्ट एक और आता है इसमें डिस्प्ले लेआउट, इन्फॉर्मेशन हो गया। एंड नाउ इट इज़ अ मिनिमल। मिनिमल में क्या होता है, आपके दोनों जो स्पीडोमीटर होता है और RPM मीटर होता है वो बहुत बड़े हो जाते हैं और जो बीच की इन्फॉर्मेशन होती है वो छोटी हो जाती है। नेक्स्ट वी गो टू ड्राइवर असिस्टेंस। ये आपको पता ही है, इसमें ADAS फीचर्स आते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है। आई विल पुट द वीडियो लिंक ऑन द आई बटन, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। दिस इज़ द नेविगेशन। ये मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है इसका, अभी देख लो। ये नेविगेशन ऐसी है, व्हेन आई कीप प्रेसिंग दिस बटन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अभी देखना आप लोग, यू गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द नेविगेशन। इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर मेरे को XCV का यही लगा है। मतलब फीचर्स तो क्या ही कहने इस गाड़ी के बारे में टचवुड, बट बहुत मज़ा आता है। व्हीकल इन्फो के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आता है आपका टायर प्रेशर, जो आपकी हवा का बताता है कितनी हवा है गाड़ी के टायर्स में। एडिशनल फीचर ये आता है, यहाँ पे आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटर, जो टायर टेम्परेचर भी बताता है। तो अगर आप हाई स्पीड चल रहे हो और आपका टायर टेम्परेचर हाई है तो आपको पता ही है कि टायर को डैमेज हो सकता है, तो गाड़ी अपने आप उसकी भी आपको नोटिफिकेशन दे देती है अगर वो है। ये आती है आपकी लाइव पावर और लाइव टॉर्क, जैसे आप ड्राइव करोगे। अभी मैं ड्राइव रिव्यू अभी इसी वीडियो में आगे जाके करूँगा, तो आपको उसमें मैं दिखाऊँगा इसमें। फिर उसके बाद लास्टली हम बात करते हैं सेटिंग्स की, तो हम जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। पहली सेटिंग्स आती है ड्राइवर असिस्टेंस की, जिसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में मिलता है कि आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बेसिकली आपको मैंने ADAS वाली वीडियो में बताया, बट मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। आपको नॉर्मल क्रूज कंट्रोल्स बहुत गाड़ियों में मिलते हैं, बट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये होता है कि आगे वाली गाड़ी के हिसाब से गाड़ी अपने आप स्पीड कम कर लेती है, बढ़ा लेती है। तो ये हो गया आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सेटिंग। नेक्स्ट आती है AFE ऑटो रीसेट। ये आपको कब करना है, जो AFE होती है ये ऑटोमेटिकली फ्यूल इकोनॉमी वाला होता है कि आपको हर इग्निशन पे करना है या आफ्टर हर फ्यूलिंग पे करना है, इसका आप सेट कर सकते हो। पैसेंजर एयरबैग को ऑन या ऑफ करना है वो आप देख सकते हो। ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, राइट का इंडिकेटर दूंगा तो यहाँ पे कैमरा चालू हो जाता है, उसको ऑफ करना है या ऑन करना है। ड्राउजीनेस असिस्टेंस के बारे में बताया ही था कि आपको कार खुद बताई थी अगर आप फटीग हो रहे होते हो या थके हुए होते हो। TPMS ऑटो लर्न टायर फिल असिस्ट, ये क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मली 35 या 33 PSI बोला जाती है, अगर आप कहीं हवा भरवा रहे हो और जो हवा भरने वाले भैया हैं अगर वो ज़्यादा भरते तो कार अपने आप हॉर्न मार देती है ताकि उनको डिटेक्ट हो जाए कि हाँ हवा भर चुकी है। नेक्स्ट यू हैव ऑप्शंस ऑफ साउंड, बहुत यूनिक फीचर है। जैसे इंडिकेटर की साउंड इसमें 3 टाइप्स की है, पहली ये, नेक्स्ट, सो यू हैव ऑप्शंस ऑफ 3 साउंड जो आप चेंज कर सकते हो। दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू गेट इन अदर कार्स। लेवल भी है साउंड का। नेक्स्ट आपको है नोटिफिकेशन साउंड, 3 टाइप की है फिर से। मतलब आपको इतनी सेटिंग मिलती है इसमें जितनी नॉर्मल आजकल स्मार्टफोन में मिलती हैं। इसकी भी आप वॉल्यूम का लेवल सेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है आपको साउंड में। और लेन डिपार्चर वार्निंग, अगर आप लेन में नहीं चल रहे तो आपको कार वार्न करती है, उसकी साउंड्स का भी आप वो है ऑप्शन।
ये देख सकते हो. So that was all about the cluster. Next we go on to the infotainment screen. तो अभी यहाँ पे स्क्रीन सेवर एनेबल हो रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ. This is the home screen that you get. You have the wireless Apple CarPlay, the wireless Android Auto. You have all the Bluetooth features. You have radio USB, that is normal. यहाँ पे आप 4 ऑप्शन होते हैं. आप अपनी स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर सकते हो और आपकी हेल्थ और कैलोरीज वगैरह यहाँ भी शो करेगा. ये स्क्रीन सेवर जो आप पर्सनली लगा सकते हो. यू हैव द लाइव वेदर अपडेट्स. यू हैव द लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स. मैं अभी न्यूज़ खोलता तो इंडिया टुडे खुल जाती है. ऐप्स के बारे में भी बताऊँगा आपको. लेट्स गेट बैक. यहाँ पे आपको कैलेंडर में और रिमाइंडर्स या डेस्टिनेशंस वगैरह, एंड यू हैव द कैलेंडर. सो यू हैव द रेडियो ऑप्शंस, देख सकते हो. नेक्स्ट यू हैव एप्पल कारप्ले, यू हैव द फोन प्रोजेक्शन एंड द ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो. नेविगेशन वही है जो यहाँ स्क्रीन पे आती है, वही आप यहाँ देख सकते हो. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ चलते हैं एप्लीकेशंस पे. इतनी सारी एप्लीकेशंस है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ. फोल्डर अपने आप कर सकते हो. क्लाइमेट कंट्रोल खोलोगे तो सारा एसी कंट्रोल आ जाएगा. अब यहाँ से सेट कर सकते हो एसी. यहाँ तो बटन्स हैं ही डुअल क्लाइमेट कंट्रोल और इन सब के, बट यहाँ से आप सेट कर सकते हो. नेक्स्ट वी गो ऑन टू, अच्छा, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो. जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या आपके आरसी वगैरह हो गए, आप यहीं सेव कर सकते हो. ये आते हैं आपके ड्राइव मोड जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिए हैं. जिप, जैप, जूम. जिप का मतलब होता है इकोनॉमी मोड, जैप होता है नॉर्मल मोड, एंड जूम होता है स्पोर्ट्स मोड. कस्टम मोड होता है आपको आपका स्टीयरिंग व्हील कैसा चाहिए, ब्रेकिंग कैसी चाहिए, आप अपने आप सेट कर सकते हो. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, यू हैव द गैलरी, यू हैव हॉरोस्कोप ऐप, यू हैव द जस्ट डायल ऐप, यू हैव इंडिया टुडे ऐप फॉर द न्यूज़. यू गेट द 360 कैमरा हेयर एज वेल. यहाँ मिलता है आपको टिकट टिप विच इज़ रिलेटेड टू द स्टॉक्स. ट्रैवल एक्सप्लोरर आपको डेस्टिनेशन बताता है और ट्रैवलिंग के लिए आपको हेल्प करता है. वेदर अपडेट आपको वेदर ऑब्वियसली. यू हैव ऑल्सो जोमेटो, तो आसपास के सारे कैफ़ेज़ वगैरह के बारे में आपको जोमेटो इन्फॉर्म कर देता है. सो देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. यहाँ देख सकते हो SOS, रोड साइड असिस्टेंस, वैले मोड, नोटिफिकेशंस, हेल्प, एंड ऑल दीज द मीडिया कंट्रोल्स. तो ये सब मिलता है आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में. सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर. अब स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू और मिलते हैं आपसे गाड़ी चलाते हुए. ओपन द रियर डोर. ऑल्सो यू हैव द बॉटल होल्डर्स और यहाँ पे आपको पियानो फिनिश, सॉफ्ट टच लेदर, पियानो ब्लैक, सिल्वर गार्निशिंग, क्रोम फिनिश्ड, डोर हैंडल, विंडो कंट्रोल्स सब वैसे ही मिलते हैं. द रियर एज वेल यू गेट अ C टाइप चार्जिंग पोर्ट. यू हैव प्लेस टू कीप योर स्टफ, एंड आपको पीछे के AC वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे सेंटर में. यू ऑल्सो हैव द बॉस मोड, जो आप सीट आगे पीछे कर सकते हो पैसेंजर साइड की. एंड बात करें सीट की कंफर्ट की, तो मैंने फ्रंट वाली सीट, माई हाइट इज 6 फीट फॉर योर रेफरेंस, एंड मैंने अभी आगे वाली सीट अपने कंफर्ट के हिसाब से कर रखी है. सो लेट मी शो यू द नी रूम. आप लोग देख सकते हो अभी फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंगली सेट है, तब भी मेरे पास एडिक्वेट नी रूम है. मैं लॉन्ग ड्राइव में भी कंफर्टेबली जा सकता हूँ. एंड थाई सपोर्ट देख लो कितनी ब्यूटीफुल है, कितना मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है. सीट्स भी रिक्लाइनेबल हैं तो आपको और फर्दर कंफर्ट मिल जाता है. सो या यू हैव अ वेरी कंफर्टेबल सीट पोस्चर एट द बैक. रीडिंग लैम्प हियर एज वेल. यू हैव द हैंडल्स टू होल्ड ऑन टू, एंड यू हैव अ हुक. टाइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, चाइल्ड सीट माउंट्स बेसिकली. पीछे भी आपको सेम डिज़ाइन मिलता है. एंड पीछे की सीट्स का भी लुक देख लो आप. बहुत वाइड कैबिन है, तो इजीली मतलब 3 किया आप, अगर आपको 4 भी बैठाना 4 भी बैठा सकते हो इसमें, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. एंड लेट्स गेट टू द थर्ड रो ऑफ द कार. गाइस वंस यू फोल्ड द सीट, ये ऐसे रिक्लाइन हो जाती है, एंड यू हैव अ गुड स्पेस टू गो ऑन टू द बैक साइड. देखो हमारी सीट्स 7 सीटर, इट्स ऑलमोस्ट 7 months दैट वी हैव बॉट दिस कार. तो 1-2 बार यूज़ हुई हैं, उसके अलावा नहीं हुई. दैट्स वाई दे आर पैक्ड. तो मोस्टली फोल्ड होती हुई जाती सीट्स, बट यू हैव गुड AC वेंट्स हेयर एज वेल. ये आप देख सकते हो. एंड यू हैव बॉटल होल्डर. यहाँ मिलता है आपको सब वूफर विच इज़ ऑल्सो पावर्ड बाय सोनी. पीछे के आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं. यू हैव द हुक्स एंड द हैंडल हेयर एज वेल. और रिकमेंडेड यही है, इसका पीछे का सीट कंफर्ट किड्स के लिए अच्छा है फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, और अगर एडल्ट्स बैठ रहे तो शॉर्ट ड्राइव्स के लिए कंफर्टेबल रह सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है. बट फॉर द लॉन्ग ड्राइव्स इट मे गेट टायरिंग. लेट मी शो यू द बूट. तो जब सारी सीट्स ऊपर है, यू गेट 240 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस. और यहाँ अच्छे से 2-3 छोटे बैग्स और 1-2 बड़े बैग्स आ सकते हैं. Not together, but if you have big bags, you can place 2 or 3 big bags. But if you have smaller bags, you can place easily 4 or 5 bags. यहाँ पे आपको सारा जैक का सामान और नेसेसिटीज़ मिल जाती हैं.
स्पेयर व्हील इसका नीचे माउंटेड है. Get a smaller size, तो cost cutting है. You get a 17-inch steel rim for the spare tire. Do subscribe to the channel and please follow on Instagram.